Okay. So this is about scalars and vectors. I was just telling that scalar depends on only magnitude, and this is direction. Magnitude plus direction. Then I gave some example: temperature, mass, velocity, speed, distance. They are all what? Scalar, because they just have magnitude. When I say force, momentum, velocity, displacement, acceleration, they all are what? Vectors. Pressure is scalar. Simple example of some of the vectors like force. If I'm pushing in right side, if I'm pushing in right side, what I will say? I will say that force is 20 Newton in east. If I push in above, I say 20 Newton force in north. But I don't say with mass. Suppose I was telling example of Abhishek. Abhishek is standing like this. Abhishek is sleeping like this. Abhishek is standing like this. In all the cases, mass is 50 kg. Is fixed. Mass don't change. So remember, vector is magnitude, direction, mass only is scalar. One more difference is there, addition of scalar. This is the most important thing which will be required. Addition of scalar and the addition of vector. Okay, student, I ask you a question. Suppose there is a block. This is a block. I apply 10 Newton here. I apply 10 Newton here. Both places I apply 10 Newton force. What will be the total force acting? 0. You all agree? If I apply say 10 Newton here and 10 Newton here, then also what will happen? Total force will be 0. Both will cancel. But if I say here, see now, if I apply pressure of 5 Pascal and if I apply pressure of 5 Pascal here, pressure, what will happen on a body? Pressure will add. Pressure will become 10 Pascal. Pressure will increase. Suppose I take object of 5 kg and again I put object of 3 kg above it. What will be the total mass? Total mass will become 8 kg. So see, in addition of scalar, we just add magnitude. We just add magnitude. But in addition of vector, we while doing addition, we consider both magnitude and direction. Magnitude and direction. This is very important concept. So this what makes the difference between a scalar and vector. So vector, finally there are 3 points important to consider anything as a vector. See, first thing, it should have magnitude. This is very important point. It must have direction, and second, it must follow law of vector addition. It must follow law of vector addition. Simple example, I'll give you a simple example of third. This is one of the example which I gave you. This is a law of vector addition. While calculating law of vector addition, we consider both magnitude and direction. Okay, now student, I ask you a question. Is current scalar or vector? Scalar or vector? This is a very important question. First, I want to know your opinion. How many of you think current to be scalar? How many of you think current to be a vector? Okay. See, current is a scalar. Current is a scalar. I tell you why. Current has magnitude. Current has direction.
Current has magnitude, current has direction. When it is moving in right side, it is moving in left side. There is a difference. If I say 2 ampere here, this will be 2 ampere in right, I say, and this is 2 ampere in left. But current don't follow vector law of addition. Current don't follow vector law of addition. Remember this point. Current don't follow vector law of addition. Even pressure. See, pressure has magnitude and pressure has direction. Pressure has magnitude and pressure has direction. See, suppose a bottle is there. Suppose a bottle is there. Suppose a bottle is there. I apply 5 Pascal pressure here. I apply 5 Pascal pressure here with my hand. I'll say this what 5 Pascal in right side. This magnitude and direction. I will apply 5 Pascal in left side. But what is happening? They are following the magnitude and direction, but the addition is not vector. Addition is what? Just 5 plus 5, 10. Normal numerical addition. But that is not with the addition of vector, which we will study in further in this class. Similarly, current. See, suppose ऐसे 2 current 2 ampere आ रहा है, and suppose current is coming here 3 ampere, and they are combining and going like this. Total current will become what? 5 ampere, right? But now you ask, suppose current ऐसा आ रहा है 2 ampere and ऐसा यहाँ से आ रहा है 2 ampere. What will be the current here after joining? Becomes 4 ampere. But suppose I take force 2 Newton and 2 Newton. What will be the resultant? Resultant will become 0. So current का magnitude direction है लेकिन vector law of addition follow नहीं करता. Scalar addition मतलब क्या? Just numbers को add कर दो. But vector addition में ऐसा नहीं होता. We cannot just add numbers. We cannot just add numbers. We have to follow a specific pattern of addition. Okay, how many are understanding this concept? कितनों को समझ में आया? आया? तो ठीक है. Now let's go ahead. So just remember 3 points: magnitude, direction, and vector law of addition. These 3 things has to be followed. Representation of a vector. See, when I write mass, I write m equal to 5 kg. But when I write vector, suppose acceleration, I write with arrow. I write with arrow. See, scalar is just represented by a variable. Vector is represented by a variable with arrow. Acceleration, force, velocity, displacement, they are represented by arrow. And how we denote them? Suppose this is denoted by arrow and this variable. Now there is one more way of drawing it. We can even draw vectors in a phasor form. See, while teaching, if you wish, you can make notes, and if you feel you can have recording also, then you can go through it. Whatever you feel comfortable. Okay. See how I write vector. See, I write acceleration of 20 Newton in acceleration of 20 Newton in north. So see how I will draw it. Phasor form, or we can say polar form. How I will draw it? See, this becomes east, west, north, south. I'll write acceleration of 20 Newton in north. So what I will do? 20 का length लूंगा मैं. I'll take length of 20. तो कोई स्केल से 20 का मेजर लेने की जरूरत नहीं है. What you can do?
you can take scaling. Suppose this 1 meter become 5 centimeter becomes 20, like this you can do, no problem. And I take it in north direction. So see, जो direction होता है वो arrow से denote करता है. This portion is known as tail. This portion is known as head. And this is known as phasor. Now it will having some angle with x-axis known as 90 degree. This is how represent, and I can write in here vector A equal to, vector A equal to 20 meter per second. A equal to 20 meter per second. This is how I represent vector. Now suppose I ask you a question, represent force F1 equal to 20 Newton in east direction and F2 equal to 8 Newton in north direction. How you will draw it? Two vectors like this. See, this 20 Newton is magnitude, this is direction. This 8 Newton is magnitude, this is direction. Now if I want to represent, I am repeating with again 20 Newton in east. I want to draw 20 Newton in east. What I'll do? I'll draw vector like this. This is O, this is east, right? This is O. I can mark also start and end point OA, which is F1 equal to 20 Newton. F2 8 Newton in north. I'll take what 8 Newton here in north. This is F2 equal to 8 Newton. I can mark this OB. कितनों को समझ में आ रहा है ये? How many understanding? चलो ठीक है. So this is how represent vector. अब देखो वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सी मैग्नीट्यूड, हाउ आई डिनोट मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज डिनोट बाय वेक्टर को मोड के अंदर डाल दो, या आई जस्ट डायरेक्ट राइट एफ. इफ आई जस्ट राइट f1, that means what I am asking? I am asking just magnitude of this vector. और I can write like this, वेक्टर को मॉड के अंदर डाल दो, क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 20 हो जाएगा, जस्ट मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स ईस्ट. सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा? F2 I put inside mod becomes 8 Newton, or I just write F2, it becomes 8. ठीक है? This is a representation of vector. In which form? In phasor form and polar form. ठीक है? Now I ask, can you draw this one? 5 Newton 37 degree east of south. 5 Newton. Once you draw, please type done, because this you cannot do in your, you cannot type this. अब जब मैं करूंगा तब आप देख सकते हो. 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. 5 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ. साउथ का कितना ईस्ट? 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ. ये मैंने ले लिया. ओ ए वेक्टर ले सकता हूँ कुछ भी, इसका नाम भी दे सकता हूँ एफ इक्वल टू 5 न्यूटन. ये एंगल हो जाएगा 37. तो ये डायरेक्शन बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये ओ ए. कितनों को आया ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? अब देखो, तो ये मैंने एंगल 37 डिग्री लिया, ये मैंने
साउथ से लिया है मैंने, वाई एक्सिस से लिया है, बट आपको कहीं से तो बताना पड़ेगा पोजीशन। 37 डिग्री कहाँ से, यहाँ से भी बना सकते हो, बट ये क्या हो जाएगा मेरा 63 डिग्री, राइट। 60 डिग्री आई कैन इवन राइट 5 न्यूटन 63 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, that is also correct. Sorry, 53, thank you. 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। चलो ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, कैन यू प्लीज डू दिस? हो जाए तो टाइप डन। हो गया? ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। 2 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, ये वेलोसिटी होगा, राइट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये 40 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ओ ए ले लो, ओ बी, ओ सी, कुछ भी ले लो, ये ओ ही रखो क्योंकि ओरिजिन है, राइट, ओरिजिन ओ सी लेते। ओ ए कितना, v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। So this is about my vectors representation in which form, in polar form, or what I told polar and phasor। ये आपको बहुत जगह यूज होगा 11th में एंड 12th में। there is one more way of writing, there is one more way of writing known as cartesian cartesian form। कार्टिशियन फॉर्म, कार्टिशियन फॉर्म मतलब क्या, मैं वेक्टर को एक्स वाई एक्सिस के फॉर्म्स में लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। नाउ हाउ टू डू दैट, सी आई जे के, वेरी गुड, वेरी गुड सूरज। तो ठीक है, अब कैसे करते हैं एग्जाम्पल। सपोज मेरा एक वेक्टर है, इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो जब मेरा कोई वेक्टर है, सपोज ये ओ है, ओ बी वेक्टर है, इसका एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल है, तो क्या करूंगा मैं, इसका रेजोल्यूशन निकालूंगा। कैसे, एक्स के अलोंग कितना ये कवर कर रहा है एंड वाई के अलोंग कितना ये कवर कर रहा है, ठीक है। सो आई कैन राइट ओ बी, सपोज मेरा ओ बी है, ओ बी इक्वल टू, सपोज दिस इज है मेरा 10 10 न्यूटन, सपोज ओ बी इक्वल टू 10 न्यूटन 30 डिग्री 30 डिग्री टू एक्स एक्सिस। ये मेरा मैग्नीट्यूड, ये मेरा डायरेक्शन। अब मैं क्या करूंगा, ओबी का मैं रेजोल्यूशन लूंगा, एक्स में कितना कवर कर रहा है, एक्स में कितना कवर कर रहा है, दैट मीन्स ओबी एक्स, ओबी एक्स कितना हो जाएगा। अब देखो 10, देखो एक्स एक्सिस में जब भी निकालते हैं हम कॉस लेते हैं, कॉस 30, वैसे ओबी वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 साइन 30, कुछ नहीं है, कॉस थीटा लगाया मैंने। सपोज ये ओबी एक्स है, ओबी एक्स ये मेरा एक्स एक्सिस में है, ओबी एक्स, कुछ नहीं होगा, देखो cos 30 क्या होता है, cos 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओ एक्स अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 10, तो क्या हो जाएगा ओ एक्स कितना हो जाएगा 10 cos 30, मैंने ऐसे ही किया है, तो क्या हो जाएगा 5√3, एंड ओ बी वाई क्या हो जाएगा 10 sin 30, क्या हो जाएगा 5। तब देखो मैं ओ बी को एक्स और वाई के टर्म्स में लिख सकता हूँ, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी एक्स, आई विल अगेन रिपीट, एक्स एक्सिस में मैं एक डायरेक्शन दूंगा, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दूंगा, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से, याद रखना। वाई एक्सिस का डायरेक्शन किससे डिनोट करते हैं, जे कैप।
मैं कभी भी जे कैप लिखूं, आपको ध्यान रखना डायरेक्शन किसके तरफ है, वाई एक्सिस। जब भी लिखूं आई कैप क्या बताता है, मेरा डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ। सो आई विल राइट ओ बी एक्स आई कैप प्लस ओ पी वाई j cap. It becomes what? 5 root 3 I cap plus 5 j cap. Okay, I'll again repeat. But how many understood this? How many understood this? Jaydeep, I will repeat. How many understood this? Okay. Okay, Jaydeep, I will again repeat. I'll give a question. From that you will understand. Suppose I have a vector. I have a vector having 2 Newton, 2 Newton, which is at 60 degree, which is at 60 degree. I write this is vector OA. I write vector OA is equal to 2 Newton 60 degree to x axis. 60 degree to x axis. Can you find OA in, this is my polar form. Can you write this in my Cartesian form in I cap and j cap? Nothing you have to do. You take cos 60 to cos 60 I cap plus 2 sin 60 j cap. आपको आ रहा है जयदीप समझ में ये? ओके ओके, करो बाकी सब। जयदीप बताओ आंसर, बाकी बताओ। cos 60 क्या हो जाएगा? ये 1 ही हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 आई कैप प्लस 2 साइन 60 क्या हो जाएगा, √3 जे कैप। सो सी बोथ आर सेम, दो तरीके बस लिखने के हैं, वो दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। अब देखो मैंने पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? अगर मेरा ये है, सपोज आई राइट x एंगल 40 और x एंगल 45, how I'll convert it into Cartesian? Suppose f is equal to x at angle 45, x at angle 45. I can write what? Vector f also equal to x cos 45 I cap plus y sin 45 j cap. I can write like this. This 10 Newton 30 degree to x axis, I can write 10 Newton 30 degree. Directly I can write. Okay. Now I give you again one question. Please try to do this. Then I'll go in opposite direction. मैं कार्टेशियन से पोलर में जाऊंगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अगेन लेट्स टेक अ क्वेश्चन। Suppose I take a vector v, velocity equal to 2 meter per second in 2 meter per second in 60 degree, 2 meter per second in 60 degree. This is in polar form. Convert it into Cartesian, Cartesian form. Convert it into Cartesian form. आ रहा है किसी को? ओके, 2 1 I cap प्लस √3 j cap। कुछ नहीं करना है, 2 cos 60 I cap प्लस 2 sin 60
जे कैप 1 प्लस रूट थ्री आई, सॉरी आई प्लस रूट थ्री जे। देखो इसको कैसे बनाएंगे, विल ड्रॉ दिस लाइक दिस 2 at angle 60, but how I will draw this, I'll draw this like this, ये आई कैप में 1 होगा, जे में कितना रहेगा ये रूट थ्री। ओके, अब देखो मुझे अगर कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना है, देखो जैसे मैं पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना है, हाउ आई विल कन्वर्ट कार्टेशियन इनटू पोलर। See now, suppose I take any vector x equal to, suppose I take any vector x equal to, any vector x equal to r angle theta, and I take x equal to, I can take x equal to r cos theta I cap plus r sin theta j cap, राइट। अब देखो अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं और अंडर रूट कर दूं, इफ आई टेक अंडर रूट ऑफ squaring this and this, suppose this x component is y component, here also I am having what x component 1 y component 1, if I square and add, if I square and add 1 square plus root 3 square, 1 square plus root 3 square, what I get 1 plus 3 equal to under root 4 equal to 2। ये क्या आ गया मेरा, ये क्या आ गया मेरा, मेरा वापस क्या आ गया, आर आ गया। I got the magnitude, I got magnitude back, this is become my magnitude। कितनों को समझ में आ रहा है ये, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस। जैसे आप हाइपोटेन्यूस निकालते हो, देखो ये परपेंडिकुलर ये बेस है, आपको हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैसे आपका ये डायरेक्शन निकाल सकते हो, यस यू कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन, यू कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन, हाउ, tan थीटा इज इक्वल, tan थीटा निकाल लो, परपेंडिकुलर बाय बेस रूट थ्री बाय वन, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस कैसे निकाल लेंगे, थीटा इक्वल टू व्हाट, थीटा इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री, आ गया मेरा एंगल। तो ये क्या कुछ नहीं करना है, ये बेस लेना है, एक्स एक्सिस को बेस ले लो, वाई एक्सिस को क्या ले लो, वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर ले लो, फिर क्या निकालो, हाइपोटेन्यूस निकालो, अंडर रूट हाइपोटेन्यूस निकालो, और क्या निकालो आप, हाइपोटेन्यूस निकालो और tan थीटा निकालो। तो हाइपोटेन्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, और आपका बेस क्या हो जाएगा, और tan थीटा क्या दे देगा आपको, एंगल दे देगा और डायरेक्शन दे देगा। क्लियर, चलो ठीक है, आई गिव यू वन क्वेश्चन, ट्राई टू टेल मी आंसर, इफ यू अंडरस्टूड आई विल गेट टू नो। तो ठीक है, सपोज आई हैव वेक्टर एफ इक्वल टू, वेक्टर एफ इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, फेजर, आपको फेजर चाहिए, हाउ आई डिनोट, आई कैन डिनोट लाइक दिस और आई कैन डिनोट लाइक दिस, सॉरी नथिंग विल कम, which is equal to what, under root of 4 square plus 3 square, which is equal to 16 plus 9 equal to under root 25 equal to 5। तो मेरा फोर्स कैसा था, यहाँ पे x एक्सिस में 4 था, y एक्सिस में 3 था, मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना होगा, इसका अंडर रूट करके ऐड कर दो, अंडर रूट करके ऐड कर दो, अंडर रूट करके ऐड कर दो, ये आ गया मेरा 5, ये फेजर फॉर्म है, ओ ए ले लो। अब मुझे ये एंगल चाहिए, ये एंगल, राइट, ये एंगल भी चाहिए मुझे, कैसे निकलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरा 3, बेस क्या है 4, 3/4। अब देखो tan 3/4 तो नहीं पता मुझे, tan 3/4 तो नहीं पता, तो मैं क्या कर लूंगा,
आई विल लीव इट लाइक दिस, मैं उल्टा कर सकता हूँ, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये नया कॉन्सेप्ट होगा, ये नया कॉन्सेप्ट होगा। tan इनवर्स 3/4 क्या है? ये tan इनवर्स 3/4 मेरा एंगल है। जैसे देखो आप करते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स क्या हो जाता है? अंडर रूट ऑफ 25, स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता है, स्क्वायर का उल्टा अंडर रूट। आप लिखते हो 2x इक्वल टू 10, एक्स क्या हो जाता है? 10/2। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे जाके क्या हो जाता है? डिवाइड। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे जाके क्या हो जाता है? डिवाइड। यू राइट व्हाट? यू राइट 2 प्लस 2 इक्वल टू, सपोज x प्लस 2 इक्वल टू 4, x हो जाएगा 4 माइनस 2। देखो एडिशन यहाँ पे जाके क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्शन हो जाता है। सिमिलरली tan थीटा इधर जाके क्या हो जाता है? tan इनवर्स हो जाता है, tan इनवर्स 3/4। जैसे देखो tan थीटा इज इक्वल टू सपोज √3, तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स √3। तो क्या ये एंगल से tan थीटा क्या करता है? एंगल से वैल्यू देता है, एंगल से वैल्यू देता है। इनवर्स क्या करता है? इनवर्स क्या करता है? वैल्यू से एंगल देता है, वैल्यू से एंगल देता है। तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3 क्या हो जाएगा? tan इनवर्स √3 हो जाएगा मेरा 60। वैसे ये tan इनवर्स 3/4 है। तो मैं कैसे लिख लूंगा? वेक्टर f इक्वल टू, वेक्टर f इक्वल टू, वेक्टर f इक्वल टू, आई कैन राइट आइदर 4i कैप प्लस 3j कैप, और आई कैन राइट वेक्टर f इक्वल टू, वेक्टर f इक्वल टू 5, एंगल क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ओके, अगर ये समझ में आया क्वेश्चन प्लीज टाइप 1, एनी डाउट प्लीज टाइप 0। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। सपोज नाउ यू हैव टू डू इन बोथ वेज, now you have to do in both ways. Suppose I have vector a equal to √3i plus √2j, and I have b equal to vector b equal to vector b equal to 10 angle 45 degree. Can you convert this into Cartesian form? And can you find the magnitude and direction? कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो और इसको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में कन्वर्ट करो। मैग्नीट्यूड मतलब ये पार्ट, डायरेक्शन मतलब ये पार्ट। ओके, आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, फिर आपके पीछे पीछे मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, आई विल सॉल्व बिहाइंड यू, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। हो जाए तो यू कैन टेल मी आंसर, यू कैन टाइप डन। वेक्टर ए इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर ले लो, ये बेस ले लो। ये लेंथ हो जाएगा √3, ये लेंथ हो जाएगा √2। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन ऐसे ही पेपर में आते हैं आपको, थोड़े परेशान टाइप क्वेश्चन, तो तकलीफ देते हैं। इजी है लेकिन लगता है क्या दे दिया। देखो वेक्टर ए क्या हो जाएगा? पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? ए लिखते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, और वी कैन राइट लाइक जस्ट दिस। क्या हो जाएगा? √3 + 5 क्या हो जाएगा? सॉरी 3 + 2 क्या हो जाएगा? √5। और एंगल क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू व्हाट? √2/√3, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2/√3। तो देखो कैसे आएगा ये, हाउ इट विल कम फेजर फॉर्म में। ये मेरा थीटा हो जाएगा और ये लेंथ कितना हो जाएगा? √5। कितनों को बना पहला वाला? हाउ मेनी अंडरस्टूड फर्स्ट क्वेश्चन? समझ में आया या बना? कितनों को बना ये?
आ रहा है? वेरी गुड, वेरी इजी. Okay, now students, let's come to this Cartesian. You have now 10 unit at 45 degree. This B, or I can write OB, or O, I can write like this. You have to convert, you take cos and sine, right? Vector B equal to, vector B equal to 10 cos 45 degree plus 10 sin 45. I cap, J cap. क्या हो जाएगा? 1/√2, राइट? 5/√2 I cap plus, sorry, 10/√2 I cap plus 10/√2 J cap. If you rationalize it, you will get, if you rationalize it, you will get 5√2 I cap plus 5√2 J cap. आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? कितनों को ये दूसरा वाला भी समझ में आ गया? कितनों को बन गया? कोई डाउट नहीं, राइट? बहुत इजी है. तो ठीक है, हम ये क्यों कर रहे हैं? Why are doing this? What is the advantage of Cartesian form and what is the advantage of polar form? Polar form. देखो इन दोनों के एडवांटेज हैं, इन दोनों के एडवांटेज है. आई टेल यू द एडवांटेज ऑफ बोथ ऑफ देम. देखो जब मुझे दो वेक्टर को ऐड करना होता है, ऐड टू वेक्टर्स, तो देखो इट्स बिकम वेरी इजी इन कार्टेशियन. वेरी इजी इन कार्टेशियन फॉर्म. कैसे? आई विल एक्सप्लेन. बट पोलर फॉर्म का क्या एडवांटेज है? मुझे अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए, तो पोलर फॉर्म बहुत इजी है. Why? Because polar form में क्या फायदा होता है? Polar form directly is written in only magnitude and direction form. मुझे देखते ही पता चल जाता है. लेकिन कार्टेशियन फॉर्म एडिशन के लिए बहुत इजी है. सपोज आई गिव यू एग्जांपल. अगर मेरे पास दो वेक्टर है f1, मेरे पास दो वेक्टर है f1, ठीक है? वेक्टर f1 है मेरा सपोज 3i कैप प्लस 10j कैप, एंड वेक्टर f2 है, क्या है ये? 2i कैप प्लस 13j कैप. और मुझे दोनों वेक्टर को ऐड करना है, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर. तो क्या करूंगा मैं? व्हेन आई एम एडिंग टू वेक्टर्स, व्हेन आई एम एडिंग टू वेक्टर्स f1 प्लस f2, व्हेन आई एम एडिंग टू वेक्टर्स, क्या होगा? मैं इस i को अलग ऐड कर दूंगा, 5i कैप, और j को अलग ऐड कर दूंगा, 23j कैप, राइट? ठीक है, ये मेरा वेक्टर का एडिशन हो गया. अब मुझे अगर इसका, अब देखो अगर मेरे को पोलर फॉर्म में दिया है, सपोज आई हैव टू वेक्टर्स, आई हैव टू वेक्टर्स f1 एंड f2. f1 दिया है मुझे 5 न्यूटन एंगल 30 डिग्री, तो 60 डिग्री, एंड f2 दिया है मुझे 10 न्यूटन एंगल 30 डिग्री. अब देखो मैं इन दोनों को जब ऐड करूंगा, तो आई कैन नॉट जस्ट ऐड देम. ये नहीं कि 5 प्लस 10 15 कर दिया, 30 प्लस 60 90 कर दिया. अरे समझ में? आई कैन नॉट डू लाइक दिस. बट कार्टेशियन में आई कैन डू लाइक दिस. देखो देखो जब भी मुझे कोई वेक्टर को एडिशन करना होता है, तो मैं क्या करता हूँ? उसको मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट करता हूँ, कार्टेशियन में कन्वर्ट करता हूँ, फिर कार्टेशियन में कन्वर्ट करके ऐड करने में मुझे आसानी होती है. कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? Suppose I have two vectors f1 and f2. If I want to add them, I have to convert them into Cartesian first. I have to convert them into Cartesian first. How? 5 cos 60 I, ये पहला वाला कर रहा हूँ, प्लस
5 sin 60 j। सिमिलरली F2 क्या हो जाएगा मेरा 10 cos 30 I प्लस 10 cos 30 j। ये हो जाएगा मेरा 5 by, okay, I'll take attendance, wait, okay, I've taken attendance, I took your attendance, don't worry, no need to type, I took। तो ठीक है, इसको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा आपका 0 2.5 2.5 I प्लस 2.5 रूट 3 j। वैसे ये क्या हो जाएगा cos 30 क्या हो जाएगा 5 रूट 3 I प्लस 5 j। अब ठीक है, साइन 30 है 5 रूट 3 5 j। अब मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, आई जस्ट ऐड देम। क्या हो जाएगा फाइनली, क्या हो जाएगा 2.5 प्लस 5 रूट 3 I प्लस 2.5 प्लस 5 j। 2.5 रूट 3 प्लस 5 j। कितनों को आया ये समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, इजी है। अब देखो, अब मुझे इसका सम का, बस आई एम एंडिंग क्लास, अब मुझे सम दिया है, मुझे सम का मुझे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है, तो क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर, एडिशन का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25 प्लस 23 स्क्वायर कितना होता है, व्हाट इज 23 स्क्वायर, आई एम जस्ट एंडिंग इन 1 मिनट। जल्दी बताओ, मुझे ही करना पड़ेगा। 529, 25 plus 529, what will be the answer, अंडर रूट ऑफ 554। ये मैग्नीट्यूड हो गया, और एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 10 इनवर्स 23/5। ठीक है, सो ये बहुत इजी है, आप इस पे थोड़ा इसको रिवाइज करना, कल हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, वी विल डू मोर क्वेश्चंस एंड वी विल स्टडी इट मोर डीपली वेक्टर्स। मुझे लग रहा है इस हफ्ते और अगले हफ्ते तक वेक्टर्स खत्म हो जाएगा, इट्स वेरी इजी राइट, वेक्टर इज वेरी इजी, वेक्टर बच्चों को टफ लगता है बट इट्स वेरी इजी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, so we will meet tomorrow, okay, I'll put recording in group।